students, subject biology, part 18, class 10, chapter life processes, learning topic human circulatory system. Human circulatory system. First of all, I want to express you circulation of blood. What is circulation of blood? What is circulation of blood? रक्त परिसंचरण है क्या? The movement of fluid inside the closed vessels is known as blood circulatory system. The movement of fluid inside the closed vessels is known as blood circulatory system. In the case of human beings, the blood circulatory system completed by following structure: a long tube pertains to responsible for circulation of blood is known as artery, veins and capillaries. Responsible for circulation of blood in living organism. The various organs of the circulatory system in humans are heart, arteries, veins and capillaries. अभी बतलाए हैं कि the following structure pertains to circulation of blood is artery, veins, capillaries and heart. H-E-A-R-T, heart. Heart means हृदय, दिल. ताकि blood is also considered as a part of the circulatory system. Blood is also included with a blood circulatory system. ठीक, आगे पता. So the human circulatory system consists of the heart, arteries, veins, capillaries and blood. ताकि human blood circulatory system, human blood circulatory system is SYSTEM system pertains to कौन फर्स्ट स्ट्रक्चर में आर्टरी, सेकंड स्ट्रक्चर में वेंस, थर्ड स्ट्रक्चर में कैपिलरीज और फोर्थ स्ट्रक्चर में जो है वो है हार्ट. वह क्या है? हार्ट. इतना जो स्ट्रक्चर है मिल करके और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण करता है. ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पर्टेन्स टू आर्टरी, वेंस, कैपिलरीज एंड हार्ट. याद रखना होगा. इतना स्ट्रक्चर मिल करके मानव में या किसी भी एनिमल्स में है ना ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का निर्माण करता है. ठीक, इसके बाद आगे बतलाता हूँ. इन द सर्कुलेटरी सिस्टम द हार्ट एक्ट एज पंप टू पुश आउट ब्लड. हार्ट इज नोन एज पंपिंग ऑर्गन. इट इज ऑल्सो नोन एज, लिखेंगे यहाँ से भी, इट इज also known as pumping organ. Pumping organ, ORGAN, pumping organ.
लिखे इट इज ऑल्सो नोन एज, दैट मीन्स हार्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज, दैट मीन्स हार्ट, हार्ट इज ऑल्सो known as pumping organ of the human body, pumping organ of the human body, क्योंकि यह ब्लड को पंप करता है, ब्लड को धक्का दे करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का काम करता है, इसे लिखे हैं कि ऑल्सो नोन एज पंपिंग ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, हार्ट। ठीक, इसके बाद बतलाता हूँ, पंप द ब्लड बतलाए, द आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज एक्ट एज पाइप और ट्यूब्स एंड थ्रू व्हिच द ब्लड flows, the tubes which carry blood are called blood vessels, blood vessels के क्या है, blood vessels बता सकते हैं कि blood vessels, लिख सकते हैं कि blood vessels, blood vessels, blood vessels रक्त वाहिनियां, कितने प्रकार के blood vessels, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। फर्स्ट में कहते हैं, फर्स्ट का नाम है आर्टरी, दूसरे का नाम है वेन्स, वेन्स, और तीसरा का नाम है कैपिलरीज, 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 आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। ए आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स हो गए थे, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक, तो ब्लड वेसल्स इट इज ए क्लोज्ड ट्यूब बाय व्हिच blood flow inside it, the closed vessels ना, क्या कह सकते हैं, the vessels which carry blood is known as blood vessels, is known as blood vessels, the tube which carry blood is known as blood vessels, blood vessels are of 3 types, artery, veins and capillaries, artery धमनियां, veins शिराएं, और ब्लड कैपिलरी जो है उसका नाम है रक्त के शिकाएं, रक्त के शिकाएं, हिंदी इसका हुआ। ठीक, इसके बाद बताता हूँ क्या से, these tubes which carry blood are called blood vessels बताए 10। There are 3 types of blood vessels in the human body, artery, veins and capillary, जो बता चुका हूँ आपको, बताया अपने कोड पर। We will now describe all the parts of the circulatory system in detail, one by one करके बताता हूँ कैसे से। हार्ट के बारे में, किसके बारे में, हार्ट के बारे में, ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर बताता हूँ, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, इसको मिटा करके इसको नोट कर लीजिए, इसको साफ करते हैं और आगे बताते हैं आप स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। This is the structure of human heart. एक right auricle, left auricle, right ventricle और left ventricle, left ventricle। ठीक, इसमें जो है impure blood और इसमें भी impure blood, इसमें pure blood और इसमें भी pure blood, इस तरह से लिखा। एक दिस इज भाल्व, दिस इज ब्लड वेसल्स, प्रीकैवल वेन, दिस इज पोस्ट कैवल वेन, पोस्टकैवल वेन। दिस इज ट्राइकस्पिड वाल्व,
भाल, ट्राइकस्पिड भाल और माइट्रल भाल। ट्राइकस्पिड भाल और माइट्रल भाल भी कहते हैं, MITRAL, माइट्रल भाल। और किसी बाइकस्पिड भाल, बाइकस्पिड बाइकस्पिड भाल, भाल। ठीक, इस तरह से स्ट्रक्चर होकर गया ये। इसके बाद इस तरह का, और यहां से फिर ऐसे इसको कहते हैं पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। ठीक, और इसको भरा हुआ फ्लूइड, पेरिकार्डियक फ्लूइड, पेरिकार्डियक फ्लूइड, फ्लूइड। इसके बाद और बतलाएंगे जब जरूरत होगा तब। इसके बाद और जरूरत होगा तो बतलाएंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, है ना। इसमें तो और स्ट्रक्चर इंटरनल लगा देंगे, इसमें हो जाएगा कार्डियक टेंडेनी। इसमें इस तरह से जाकर के कार्डियक टेंडेनी, कार्डियक टेंडेनी, कार्डियक टेंडेनी। ठीक, इस तरह से है, बतलाता हूँ कैसे कैसे ये काज करता है। से ह्यूमन हार्ट इंटरनल स्ट्रक्चर, कार्डियक टेंडेनी इंटरनल स्ट्रक्चर, कुछ एक्सटर्नल है कुछ इंटरनल है। दिस इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। ठीक, बतलाते हैं आगे। कहता है कि द हार्ट इज रफली ट्रायंगुलर इन शेप। शेप इसका, शेप कैसा है इसका, SHAP, शेप होता है ह्यूमन हार्ट का ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर माने तीन भुजा के आकार वाला, त्रिभुजाकार। क्लिंज फिस्ट या क्लोज फिस्ट, क्लोज फिस्ट, क्लोज, क्लोज फिस्ट, क्लोज फिस्ट, बंद मुट्ठी के जैसा, बंद मुट्ठी की आकृति का इसका शेप होता है ह्यूमन हार्ट का। शेप बतलाया। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल मसल कॉल्ड कार्डियक मसल, मेड अप ऑफ स्पेशल मसल, कार्डियक मसल, कार्डियक मसल का, कार्डियक मसल। और फाइबर पूछेगा था परकिंजे फाइबर, परकिंजे, परकिंजे फाइबर का, फाइबर का बना होता है। अगर पूछे फाइबर तब, मसल पूछे तो कार्डियक मसल, फाइबर पूछे तो परकिंजे फाइबर का बना होता है। कौन, ह्यूमन हार्ट, मैमेलियन हार्ट बता रहा हूं। ठीक, शॉर्ट शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक, द साइज ऑफ आवर हार्ट इज अबाउट दी, है ना, सेम एज आवर क्लिंज फिस्ट। अभी लिखा है क्लिंज फिस्ट, क्लोज फिस्ट। ठीक, द हार्ट हैज 4 कंपार्टमेंट कॉल्ड चेंबर्स। मैमेलियन हार्ट इज 4 चेंबर, 4 चेंबर्ड हार्ट, 4 चेंबर्ड, 4 CHAMBERED, 4 चेंबर्ड हार्ट, 4 चेंबर्ड हार्ट। 4 चेंबर्ड में कौन कौन है ना, 2 ऑरिकल, ऑरिकल का दूसरा नाम है एट्रिया भी, ऑरिकल, ऑरिकल भी कहते हैं इसको, एट्रिया, ATRI, एट्रिया, प्लुरल, सिंगुलर एट्रियम, एट्रियम, एट्रियम भी कहते हैं इसको, एट्रिया और एट्रियम भी। तो ऑरिकल कितना, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। ऑरिकल की दीवार पतली होती है, ऑरिकल की दीवार क्या होती है, पतली होती है, और वेंट्रिकल की दीवार मोटी होती है। क्यों, वेंट्रिकल की दीवार मोटी इसलिए होती है कि वेंट्रिकल में ब्लड जो है आकर के क्या स्टोर होता है इसमें वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कस्पिड, जो लिखा यहाँ दिखाए हैं ट्राइकस्पिड भाल्व या माइट्रल भाल्व, माइट्रल भाल्व है ना, के द्वारा बाहर जो है ना ब्लड पुश कर जाता है ना, फेंक देता है, फेंक देता है। जब ये वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तब
और एक्सपेंड करता है तो ब्लड जो है ऑरिकल से गिर जाता है वेंट्रिकल में, ऑरिकल से गिर जाता है वेंट्रिकल में, है ना। फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट बतलाएंगे, उसमें बतलाएंगे, ये अभी बता रहे हैं धीरे 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 धीरे। ठीक, फोर्थ चैम्बर हार्ट बताए इनसाइड इट। The upper two chamber of heart is called atria, लिखिए atria या atrium, सिंगुलर ऑरिकल बतलाने कि यहाँ वेंट्रिकल, और नीचे वाला को बताया वेंट्रिकल। ठीक, heart called auricle and the lower two chamber of heart are called ventricles. The two auricle receive blood from the two main veins, two main veins के द्वारा, ये two main veins है, three caval veins, three caval veins, है ना। या इसको कहते हैं, इसका दूसरा नाम है सुपीरियर वेना कैवा, सुपीरियर वेना कैवा, है ना। टू प्री कैवल वेन जो कहे हैं, इसी का नाम है सुपीरियर वेना कैवा, सुपीरियर वेना कैवा, है ना। वो टू लिखा है, टू मेन वेन्स, टू मेन वेन्स एंड द टू वेंट्रिकल्स ट्रांसपोर्ट ब्लड टू द एंटायर बॉडी एंड द लंग्स। द लेफ्ट एट्रियम इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू ए वाल्व, लेफ्ट एट्रियम, इन्हें देखिए लेफ्ट एट्रियम, इसमें देखिए आज ही राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, या लेफ्ट एट्रियम भी कह सकते हैं। लेफ्ट एट्रियम ना कनेक्ट विद, क्या कहता है कि लेफ्ट एट्रियम इज कनेक्टेड, तक लाइन समझ लायक है कि द लेफ्ट एट्रियम इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, द लेफ्ट एट्रियम इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना, थ्रू ए वाल्व, है ना, V1, थ्रू ए वाल्व V1। The left atrium connected to a valve through left ventricle, A, इसे ये लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट है, समझे, वाल्व के द्वारा, वाल्व के द्वारा नहीं, ये लेफ्ट एट्रियम है ना, एक वाल्व यहाँ है ट्राइकस्पिड वाल्व से, है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट है, लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट है, लेफ्ट एट्रियम एक वाल्व के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि ठीक V1 वाल्व के द्वारा। सिमिलरली, इसी तरह से द राइट एट्रियम इज कनेक्टेड टू द राइट वेंट्रिकल थ्रू अनदर वाल्व V2। इसको जो है, इसको अगर V1 कहते हैं, इस वाल्व को V1 नाम रखते हैं, V1, तो इसका हो जाएगा V2। ये हो गया राइट एट्रिकल, राइट ऑरिकल कनेक्टेड टू द वाल्व V2 थ्रू ए वाल्व V2 बाय वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल ना राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट है वाल्व के द्वारा, लेफ्ट ऑरिकल एक वाल्व के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट है। ठीक, कनेक्शन बताया कौन कैसे कनेक्ट है से। इसके बाद दिस वाल्व प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू एट्रिया। इस वाल्व का काम, फंक्शन ऑफ वाल्व, सुनिएगा, फंक्शन ऑफ वाल्व, वाल्व में होता है कपाट, कि बैक फ्लो नहीं होने देगा, इसमें से ब्लड इसमें गिर गया, इसमें से फिर इसमें जाने नहीं देगा, है ना। इसमें से ब्लड इसमें गिर गया तो इसमें से ब्लड फिर इसमें जाने नहीं देगा, इसमें जाएगा, पूरे बॉडी में जाएगा तो अनदर वाल्व से जाएगा, अनदर वाल्व से जाएगा, बैक फ्लो नहीं होने देता है, रोकता है, वाल्व का काम यही है ना। दी वाल्व, है ना, दी वाल्व इज रिस्पांसिबल फॉर बैक फ्लो ऑफ ब्लड, बैक फ्लो ऑफ ब्लड, कहता है कि इनटू कहता ब्लड। ठीक, दिस वाल्व प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू एट्रिया व्हेन द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट टू पंप ब्लड आउट ऑफ द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी में जब जाता है तब। ठीक, इसके बाद आगे चलिए, दिस इज बिकॉज व्हेन द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट द वाल्व V1 एंड V2 क्लोज ऑटोमेटिकली सो दैट द ब्लड मे नॉट गो बैक इनटू एट्रिया। देखिए फिर बता रहा है कि जब यह वेंट्रिकल जब सिकुड़ेगा तो ये दोनों जो कपाट बंद हो जाएगा, वाल्व बंद हो जाएगा, दूसरे ब्लड वेसल्स के द्वारा पूरे सिस्टम में या जहाँ जाना है ब्लड हो, दूसरे जो है ना ब्लड वेसल्स के द्वारा जाएगा, ये कि इसमें से ब्लड इसमें चला जाएगा। ये सिकुड़ेगा एक बार, दोनों ये फैलेगा दोनों एक बार, ये दोनों फैलता है एक बार, सिकुड़ेगा दोनों एक साथ, ये भी दोनों सिकुड़ेगा एक साथ, ऐसे काम होता है ना। ठीक, ऑरिकल का सिकुड़ना एक साथ, वेंट्रिकल का भी सिकुड़ना एक साथ, ऑरिकल का बंद होना एक साथ, वेंट्रिकल का भी बंद होना एक साथ, क्लोज्ड यानी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, इसके बाद की बात सुनिए, द जॉब ऑफ हार्ट इज टू पंप ब्लड अराउंड आवर बॉडी, इसलिए पंपिंग ऑर्गन इसका नाम ही है, पंपिंग ऑर्गन तो शुरू में लिखा है, ब्लड इज नोन एज पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी, क्योंकि ब्लड को पंप करता है, एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का काम करता है ब्लड को। ठीक, पंपिंग ऑर्गन बताएं आपको, ऑल द ऑरिकल एंड वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट है ना कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, है ना, कहता एट अप्रोक्सीमेट टाइम्स एंड मेक द हार्ट है ना बिहेव लाइक ए है ना
pump like a pumping organ, like a pumping organ, like a pump बताए थे. Since ventricles have to pump blood into various organs with high pressure, they have thicker walls than atria. बताए थे कि वेंट्रिकल की दीवार जो मोटी होती है और इकल की दीवार पतली होती है, क्योंकि इसको जो है ब्लड पुश करने के लिए रहता है, इसको वेंट्रिकल को पूरे सिस्टम में, इसीलिए इसकी दीवार मोटी होती है. ये रिसीविंग चेंबर है, ब्लड को रिसीव करता है, और ये ब्लड डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर है. और इकल इज नोन एज ब्लड रिसीविंग चेंबर एंड वेंट्रिकल इज नोन एज ब्लड डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर. तो ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करना है पूरे आपके बॉडी के सिस्टम में, तो इसकी दीवार मोटी होगी, तभी यह संभव है कि ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट आपके पूरे बॉडी सिस्टम में कर सकता है. नहीं तो अगर फट गया ये, अब फट जाएगा तो कैसे होगा, फिर तो इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा. ठीक, इस प्रकार से आगे चलिए. ए शीथ ऑफ टिश्यू कॉल्ड पेरिकार्डियम प्रोटेक्ट द मस्कुलर हार्ट. पेरिकार्डियम तो लिख के दिखाए ही हैं. पेरिकार्डियम फ्लूइड है ना, ये भी लिख के दिखा. पेरिकार्डियम जो है वो क्या है, ए मस्कुलर स्ट्रक्चर विच सराउंड द क्या हार्ट. ए मस्कुलर स्ट्रक्चर विच सराउंड द हार्ट इज नोन एज पेरिकार्डियम. पेरी मींस सराउंड होता ही है ग्रीक वर्ड में. पेरी मींस सराउंड और कार्डियक मींस कार्डियक मसल्स. अराउंड कार्डियम इज कॉल्ड कार्डियक मसल. ठीक, इसके बाद द चेंबर ऑफ द हार्ट are separated by a partition called septum. This is septum. Auriculoventricular septum. This is ventricular septum. Ventricular septum. S-E-P-T-U-M. Ventricular septum. और this is auriculoventricular septum. ventricular septum. S-E-P-T-U-M. auriculoventricular septum. Auricle और ventricle दोनों को दो भाग में बांट दे रहा है. The septum which separate auricle and ventricle into two parts is known as auriculoventricular septum. ठीक. Now the arteries, veins and capillaries are a kind of thin pipes through which blood flows in the body. Arteries, veins and capillaries are called blood vessels. शुरू में बताया है blood vessels से. Arteries are the thick walled blood vessels. आर्टरी की दीवार कैसी होती है, मोटी. आर्टरी की दीवार मोटी होती है ना. इसका वैसा मतलब कि आर्टरीज में इसका पढ़िएगा कौन चीज, हिस्टोलॉजी ऑफ आर्टरी पढ़िएगा. तो आर्टरी जो 3 परत का बना होता है, 3 लेयर्स का. फर्स्ट को कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडिल वाला को ट्यूनिका मीडिया, और भीतर और उससे बाहर वाला को ट्यूनिका इंटीमा. ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटीमा 3 लेयर का बना होता है. कौन, आर्टरी. लेकिन जो है ना वेंस में जो होता है ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटीमा होता है, लेकिन ज्वाइंट होकर के एक ही लेयर बनाता है. इससे 2 लेयर हो गया. ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा दोनों एक साथ मिल गया और एक लेयर बनाया था. ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका मीडिया 2 ही लेयर आ गया वेंस में. तो वेंस की दीवार पतली हो गया. वेंस का दीवार क्या हो गया, पतली हो गया. चलिए ए पढ़ा जाता है हिस्टोलॉजी ऑफ टिश्यूज. तो दोनों में डिफरेंसेस बतला रहे हैं. डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरी एंड वेंस. सुनते जाइएगा. आर्टरी एंड वेंस सभी बोल के सुना रहे हैं. इसको बाद लिख देंगे बड़े बोर्ड पर, जरूरत होगा तो लिख देंगे, ना बोल के ही सुना करके खत्म कर देंगे. The walls of artery is thick because presence of 3 layers. Tunica externa, tunica media and tunica intima. But the walls of veins are thin due to presence of tunica externa and tunica media. ठीक. इसके बाद चलिए, इसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए इसमें डिफरेंसेज में कि आर्टरी में स्मॉलर ल्यूमेन. आर्टरी में सेकंड पॉइंट स्मॉलर ल्यूमेन. ल्यूमेन है क्या, ऐसे तो बताते चले जा रहे हैं कि स्मॉलर ल्यूमेन. तो देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर. ऐसे मान लिया कि ब्लड वेसल्स है ए, और ये जो गैप हुआ है यहाँ से ऐसे नीचे की ओर ए,
और यहाँ से इसके बीच में जो इतना गैप हुआ नहीं, गैप का इसी का नाम है ल्यूमेन। गैप का ही नाम है क्या, गैप वही कहते हैं ल्यूमेन, LUMEN, यही ल्यूमेन है। तो ये आर्टरी का है, किसका, आर्टरी में, आर्टरी का ल्यूमेन है। इस तरह से आप देखिए यहाँ वेन्स दिखा रहा है ऐसे, और ऐसे दिखा रहा है, ये देखिए ऐसे, और देखिए ऐसे, और यहाँ से यहाँ तक का ही है, ये ल्यूमेन हो गया, LUMEN है ल्यूमेन। लार्ज ल्यूमेन है, यहाँ से यहाँ चौड़ा है, इसमें कुछ पतला है, ये वेन हो गया, VEIN, वेन। तो वेन में ल्यूमेन हो गया बड़ा। तो आर्टरी में ल्यूमेन, सेकंड पॉइंट है कि आर्टरी में ल्यूमेन जो है ना स्मॉलर, और वेन्स में ल्यूमेन क्या हो गया, लार्जर, बड़ा हो गया। ठीक, सेकंड पॉइंट। चलिए थर्ड पॉइंट में क्या होगा, चलिए ब्लड का जर्क, जर्क है, जर्क मतलब उछाल, जर्क का मतलब क्या, उछाल, इसमें उछाल ज्यादा होगा, आर्टरी में या वेन्स में। तो देखिए आर्टरी की दीवार जो है ना क्या है, आर्टरी में ल्यूमेन जो है छोटा है, जब ल्यूमेन छोटा है तो ब्लड तेजी से आगे की ओर बढ़ेगा, ब्लड तेजी से आगे की ओर बढ़ेगा, इसलिए जर्क ज्यादा होगा किसमें, आर्टरी में, आर्टरी में ब्लड का जर्क ज्यादा होगा। और वेन्स में जो है, वेन्स का ल्यूमेन जो है वह ज्यादा चौड़ा है, इसका माउथ, इसका है क्या है, इसका माउथ चौड़ा है, इसलिए इसमें जर्क क्या होगा, कम होगा, इसमें जर्क क्या होगा, कम होगा। चलिए 3 पॉइंट बतलाए है ना। ठीक, इसके बाद और कैपिलरीज में एक आध पॉइंट बतला देते हैं कि कैपिलरी जो होता है, कैपिलरी थिकनेस ऑफ कैपिलरी वन सेल थिकनेस, बहुत बहुत पतला, जिसको बताया थे रक्त के शिकाएं, बहुत महीन पतला, बाल जैसे सर में जैसे बाल है रहता, जितना पतला उतना पतला ये होता है, ये 1 सेल थिकनेस। तो इसमें कुछ कहना ही नहीं है, बहुत कम, बहुत कम। आगे चलिए, इसके बाद बताया आपको आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी बताए। आर्टरीज आर द थिक वाल ब्लड वेसल्स व्हिच कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देखिए अब देखिए आर्टरी कहेंगे किसको, तो आर्टरी जो है वो जो हार्ट से ब्लड पूरे सिस्टम में ले जाए, या जहाँ हार्ट से ब्लड पूरे सिस्टम में ले जाए वह है आर्टरी, वह क्या है, आर्टरी। और यहीं पर लगे दिखा दे रहे हैं कि पूरे सिस्टम से जो ब्लड हार्ट में लाए, पूरे सिस्टम से जो ब्लड हार्ट में लाए, ऐसे साइन करके, इस तरह से साइन, उसको कहेंगे वेन, उसको क्या कहते हैं, वेन। इधर दिखाई नहीं, यहाँ दिखा देते हैं ऐसे, यहाँ दिखाई देता है, देखिए बाहर से इधर ब्लड ला रहा है, ए जो पूरे सिस्टम से ब्लड कलेक्ट करके ला रहा है हार्ट में, कहाँ ला रहा है, हार्ट में, वह हो गया वेन, वह क्या हो गया, वेन। ऐसे देखिएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से पूरे हार्ट से ब्लड ले जाए पूरे सिस्टम में, हार्ट से ब्लड है ना, आर्टरी इज ए ब्लड वेसल व्हिच कैरी ब्लड है ना अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से अवे ले जाए तो आर्टरी, और द ब्लड वेसल्स व्हिच कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट इज कॉल्ड क्या, वेन, इज कॉल्ड वेन। जहाँ जो जरूरत रहता है उसको बतला देते हैं, फिर से एक बार, आर्टरी है ना, द ब्लड वेसल्स व्हिच कैरी ब्लड है ना अवे फ्रॉम द हार्ट इज कॉल्ड आर्टरी, द ब्लड वेसल्स व्हिच कैरी ब्लड towards the heart, from all system to heart, from all system, all organs to heart is called vein, is called vein। चलिए आर्टरी और वेन से बता दिए, ठीक, इसको कहते हैं ऐसे। इसके बाद आगे बतलाते हैं आर्टरीज आर फाउंड इन द होल ऑफ आवर बॉडी, आपके पूरे शरीर में आर्टरी है भरा हुआ है, आपके पूरे शरीर में आर्टरी है भरा हुआ, ठीक। इसके बाद कहता है कि मेन आर्टरी, इसको कहते हैं क्या, आयोर्टा कहते हैं उसको, आयोर्टा या डॉर्सल आयोर्टा, आयोर्टा मीन्स महाधमनी, आयोर्टा, AORT आयोर्टा, या डॉर्सल आयोर्टा भी उसका नाम है, वो महाधमनी है, सभी धमनियों का राजा, ठीक। इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट थ्रू ए वाल्व। कौन कहता है कि आयोर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट करता है, आयोर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल, देखिए यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल इससे कनेक्ट रहता है आयोर्टा, यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल इसी से, यहाँ से निकलता है आयोर्टा, यहाँ से इसी में से निकलता है कौन, आयोर्टा, डॉर्सल, ऐसे जाकर के ऐसा स्ट्रक्चर इसी से निकलता है, यही है डॉर्सल आयोर्टा, ये आयोर्टा कहिए इसको, या डॉर्सल आयोर्टा,
आयोटा भी लिख सकते हैं, आयोटा, ये डोर्सल आयोटा। ये ब्लड सप्लाई करता है किसको? ये ब्लड सप्लाई करता है सिस्टेमो, ना पल्मो और कुटैनस आर्टरी। देख लीजिए 3 गो आर्टरी इसमें से निकाल दिए। जो लेफ्ट वेंट्रिकल में से जो निकला कौन है ना, कौन? आयोटा। ये किसको ब्लड सप्लाई किया? ना सिस्टेमो, पल्मो और कुटैनस आर्टरी। शॉर्ट में लिख दिए हैं। एस फॉर सिस्टेमो, पी फॉर पल्मो, पल्मोनो, और सी फॉर ना कुटैनस। सिस्टेमो, पल्मो, कुटैनस आर्टरी वहीं से निकलता है। सिस्टेमो माने पूरे सिस्टम को ब्लड सप्लाई किया। ये पूरे सिस्टम को ब्लड सप्लाई किया। कौन? डोर्सल आयोटा, महाधमनी। और किसको किसको मुख्य रूप से दिया ब्लड? सिस्टम, देखिए सिस्टम, पूरे सिस्टम को। पल्मोनो, लंग्स को। क्यूटेना, क्यूटिनो, और क्यूटिनो स्किन को, क्यूटिन स्किन, सब को ब्लड सप्लाई किया डोर्सल आयोटा। इसके बाद आगे इसके बाद बढ़ाते हैं। आगे सुनिएगा क्या होता है से कहता है इसके बाद the main artery carries oxygenated blood from the left ventricle to all the parts of the body. मेन कहता है कि the main artery carries oxygenated blood from the left ventricle to all the parts of the body. लेफ्ट वेंट्रिकल क्या? लेफ्ट वेंट्रिकल, इसमें कैसा ब्लड? लेफ्ट वेंट्रिकल में प्योर ब्लड। कैसा ब्लड? प्योर ब्लड। हाफ राइट साइड में, हाफ राइट साइड में लीजिए इसको। तो ये हाफ लेफ्ट लीजिए, राइट और लेफ्ट ऑरिकल है, लेफ्ट ऑरिकल। तो हाफ राइट साइड में इम्प्योर ब्लड, हाफ लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड रहता है। हाफ राइट साइड में, राइट साइड में, हाफ राइट साइड में इम्प्योर ब्लड, हाफ लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड। तो देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल में प्योर ब्लड है। इसी से कह रहा है कि ब्लड, इससे जो ब्लड सप्लाई जो होगा, जो इससे जो भी आर्टरी वेंस ब्लड सप्लाई करेगा, आर्टरी, वह प्योर ब्लड सप्लाई करेगा। कैसा ब्लड सप्लाई करेगा? प्योर ब्लड सप्लाई करेगा। ठीक, पार्ट्स ऑफ द बॉडी। केवल लंग्स को ब्लड सप्लाई नहीं देता है। अनदर आर्टरी कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी इज कनेक्टेड टू द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल, देखिए राइट वेंट्रिकल यहाँ है, ये राइट वेंट्रिकल है। देखिए यहाँ है राइट वेंट्रिकल। यह राइट वेंट्रिकल से जो आर्टरी निकला वह पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी है। देखिए पल्मोनरी आर्टरी इसको कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। यह कैसा ब्लड सप्लाई करेगा? यह ब्लड सप्लाई किसको करेगा ना? हाँ, लंग्स को करेगा। किसको सप्लाई करता है? लंग्स को, लेकिन इम्प्योर ब्लड। कैसा ब्लड? इम्प्योर ब्लड सप्लाई किया पल्मोनरी आर्टरी। यह जो इससे जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो था कौन? आयोटा या डोर्सल आयोटा, यह जो ब्लड सप्लाई किया, यह प्योर ब्लड सप्लाई किया। और किसको सप्लाई किया? सिस्टेमो पल्मो कुटैनस आर्टरी को, सिस्टेमो पल्मो कुटैनस आर्टरी को ब्लड सप्लाई किया। ठीक, इस तरह से चलिए। एक ही देगा किसको ब्लड सप्लाई? यह ब्लड सप्लाई देगा लंग्स को। यह ब्लड सप्लाई देगा कौन? पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स को। लंग्स में इस तरह से चेंबर बना हुआ है, एयर चेंबर या एल्वियोलाई जिसको कहते हैं, या जिसका और नाम है एल्वियोलर सैक। एल्वियोलर सैक। तो एल्वियोलर सैक में भरा हुआ कौन चीज? एयर भरा हुआ है। एल्वियोलर सैक में भरा हुआ है क्या? एयर। ठीक, देखिए इसमें एल्वियोलर सैक में एयर भी दिखा दिए। एयर, इस एयर का मतलब ऑक्सीजन। आई ब्लड सप्लाई कर रहा है पल्मोनरी आर्टरी, प्योर ब्लड सप्लाई कर रहा है किसको? लंग्स को। किसको ब्लड सप्लाई कर रहा है? लंग्स को ब्लड सप्लाई कर रहा है। ये प्लूरा दिखा रहे हैं लेयर, इसमें भरा रहता है प्लूरल फ्लूइड, सब प्लूरल फ्लूइड इसमें भरा रहता है। इसमें भी, ठीक, इसमें भी सब प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है। ठीक, सब प्लूरल फ्लूइड है ना। तो देखिए इम्प्योर ब्लड आया कहाँ? लंग्स के, लंग्स के एल्वियोलाई में आया, जहाँ पर एयर है। जहाँ पर क्या भरा हुआ है? एयर भरा हुआ है। एयर है एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई है जिसमें भरा हुआ है एयर। इसमें आकर के ऑक्सीजनेशन हो गया। इम्प्योर ब्लड ऑक्सीजन से मिला तो हो गया प्योर। क्या हो गया? प्योर। तो पूछेगा आपको कि ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन लंग्स, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन लंग्स होगा। ठीक, चलिए यहाँ पर हो गया जाकर के दी पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू दी लंग्स। लंग्स में देखिए, लंग्स में लाया और लंग्स से फिर यहाँ से, लंग्स से फिर ब्लड जो है ना किसके द्वारा है ना, फिर जो है ना ये है ना कोई ब्लड वेसल्स यहाँ से जो है इस तरह से ऐसे ब्लड वेसल्स इसमें लाएगा ब्लड, यहाँ ऐसे लाएगा। देखिए ब्लड लाया कहाँ? इसमें आ गया
लेफ्ट ऑरिकल में आ गया, लेफ्ट ऑरिकल में आया। ठीक, कैसा ब्लड पल्मोनरी वेन के द्वारा, तो पल्मोनरी आर्टरी लाया था, ये जो ले जाएगा ये यहाँ से प्योर ब्लड जो ले जाएगा कहाँ, प्योर ब्लड जो आया कहाँ आया लेफ्ट ऑरिकल में जो आया, जो ब्लड जो प्योर है ऑक्सीजनेटेड है उसको कौन लाया, उसका नाम है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन नाम है। पल्मोनरी वेन जो है लंग्स से प्योर ब्लड को लाया ना लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल जब सिकुड़ा, जब ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो फिर गिर गया ब्लड, कहाँ गिरा, किसमें गिरा, किसमें गिरा, वेंट्रिकल में गिरा। अब वेंट्रिकल जब है ना क्या करता है ना, वेंट्रिकल जब एक्सपेंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपेंड करा तो ब्लड इसमें गिरा, कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ भाल्व जो है बंद हो जाता है और इस अयोटा के द्वारा ब्लड सप्लाई सिस्टम पल्मोक्यूटेनस आर्टरी में हो जाता है।